accused in the devastating Goa nightclub fire, Saurabh Luthra and Gaurav Luthra, are likely to be brought back to India today. Now, that is the big breaking news that we're getting you at this point in time, where both brothers, currently in Thai custody, are facing legal proceedings following their arrest in Phuket on 11th December. Thai authorities acted after receiving intelligence on 9th December about the brothers' presence in Phuket. Indian agencies coordinated closely with Thai police throughout the operation. The legal team representing the Luthra brothers has also arrived in Thailand to assist in the deportation process and provide the necessary legal aid. They met the brothers at the detention center to brief them on the upcoming legal procedures. The brothers are accused of involvement in the tragic fire at Goa's Birch by Romeo Lane nightclub on 6th December, which claimed 25 lives. Once back in India, the Goa police will proceed with further legal action against them. Well, that is the big breaking news that we're beginning at the top of 1 o'clock today, is where the main accused in the devastating Goa nightclub fire, Saurabh Luthra and Gaurav Luthra, are set to be brought back to India today. Well, the Saurabh and Gaurav Luthra are currently in Thai custody. That is the big breaking news that we're getting you at this point in time. They will arrive at the Delhi airport tomorrow, is what we are given to understand. However, this is exactly over the Goa Club Inferno, where Birch by Romeo Lane is where several people lost their life owing to a massive, devastating fire. The deportation process is now underway in Thailand. The Indian authorities are working in tandem with the Thailand authorities. Both brothers are currently in Thailand's custody and are facing legal proceedings following their arrest in Phuket on 11th December. They are going to be brought back to Delhi tomorrow. My colleague Jay Prakash Singh is joining me right now to get us more details. Jay Prakash जी, ये बताइए कि क्या कुछ प्रोसीजर है जो अभी फॉलो करना बाकी है थाईलैंड अथॉरिटीज के द्वारा, जिसके जरिए लूथरा ब्रदर्स को इंडिया लाया जाएगा, भारत लाया जाएगा, पहले दिल्ली लाया जाएगा और फिर गोवा की तरफ लोग रुख करेंगे। कहाँ ये पूरा प्रोसीजर अभी जाके अटका है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लूथरा जो ब्रदर्स हैं, सौरव लूथरा और गौरव लूथरा, ये उस बर्च बाय रोमियो लेन क्लब के ओनर्स हैं, जिस क्लब में 7 जो है दिसंबर को, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर की रात को आग लगी, 25 लोगों की मौत हुई। तो इन दोनों ने उसी रात को जो टिकट है वो एमएमटी प्लेटफॉर्म से निकाला, वहां से ये पुकेट चले गए और पुकेट जाने के बाद एक होटल में ये वहां पर रुक गए थे, जिसकी जानकारी गोवा पुलिस को मिली। तो गोवा पुलिस ने इसकी जानकारी सीबीआई से शेयर की और नोडल एजेंसी सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद इंटरपोल ने बैंकॉक जो थाईलैंड पुलिस है उससे संपर्क किया और इन्हें फुकेट में जो है डिटेन किया गया। जो थाईलैंड गवर्नमेंट का जो नियम है, वहां की सरकार का जो नियम है, ब्लू कॉर्नर नोटिस में आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें आप डिटेन कर सकते हैं। तो इन्हें डिटेन करके फुकेट से बैंकॉक लाया गया और बैंकॉक के डिटेंशन सेंटर में इन्हें वहां पे रखा गया। पिछले 3 दिनों से ये बैंकॉक के डिटेंशन सेंटर में है, जहां पर इनका जो पासपोर्ट और वीजा जो इंडियन अथॉरिटी ने रद्द कर दिया था, उसे थाईलैंड अथॉरिटी जो है वो ट्रांजिट वीजा जो है इन्हें दे रही है और ट्रांजिट वीजा पर ये कल सुबह दिल्ली आएंगे। दिल्ली आने के बाद गोवा पुलिस ऑलरेडी जो दिल्ली में मौजूद है वो इन्हें वहां पर अपनी हिरासत में लेगी और दिल्ली की अदालत में दिल्ली पुलिस के साथ इन्हें कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए जो है इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद इन्हें गोवा की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर इनकी ऑफिशियल पुलिस कस्टडी ली जाएगी। जयप्रकाश, ये भी बताइए कि जहां तक एंटिसिपेटरी बेल है उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया था और इनका ये भी कहना है लूथरा ब्रदर्स का कि अगर इनको गोवा लेके जाया जाता है तो इनके साथ बदसलूकी किया जा सकता है। ये सब के बारे में क्या जानकारी है? इनकी तरफ के काउंसिल जो है वो क्या दलील पेश कर रहे हैं? देखिए, इनका ये कहना है कि गोवा में इनके साथ ज्यादती हो सकती है। इनका डायरेक्ट इस पूरे केस से कोई लिंक नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने सारी गलतियां डेस्क मैनेजर्स और जो अंदर जो दूसरे मैनेजर्स हैं उन पर डाली है। ये सारे मैनेजर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 जो मैनेजर गिरफ्तार हुए हैं उनके ऊपर इन्होंने सारी गलतियां डाली हैं। लेकिन कोर्ट ने, जो दिल्ली की कोर्ट है, उन्होंने इन्हें जो अंतरिम राहत है वो देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की जो तलवार
तलवार है वो लटकनी शुरू हो गई। अगर इन्हें अंतरिम राहत मिली होती तो ये ट्रांजिट जो वीजा है उस पर थाईलैंड से पहले दिल्ली आते और दिल्ली में दोबारा ये कोर्ट के सामने पेश होते, लेकिन क्योंकि इनको अंतरिम राहत नहीं दी गई है, इंटरिम बेल नहीं दी गई है, तो इन्हें गोवा पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी और कस्टडी में लेते ही इन्हें गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद दिल्ली से इन्हें गोवा की अदालत में लाया जाएगा। जयप्रकाश, ये भी जानना चाहेंगे कि जहां तक दोनों लूथरा ब्रदर्स है, ये कह रहे हैं कि मैनेजर की जिम्मेदारी थी, इवेंट मैनेजर की जिम्मेदारी थी, ये अपने आप को बेगुनाह साबित करने मांग रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा एक स्केड्यूल्ड मीटिंग थी फुकेत में जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा और वो यहाँ से भाग के नहीं गए हैं। इसके बारे में हम क्या जानते हैं? देखिए, ये भाग कर नहीं गए हैं, ये बात ये कह रहे हैं, लेकिन जिस रात को आग लगती है उसी रात को ये एमएमटी पर अपना जो है टिकट बुक कराते हैं, उसी रात को ये अर्ली मॉर्निंग सुबह फुकेट चले जाते हैं। उनकी अगर कोई प्री प्लान मीटिंग थी तो इन्होंने, सौरव लूथरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट किया था कि इन्हें दुख है, लेकिन उन्होंने ये पोस्ट नहीं किया था कि इसमें किसकी गलती है या गलती पर माफी मांगने जैसी कोई पोस्ट नहीं की थी। तो अगर इनका वो प्लान शेड्यूल था तो उसकी जांच गोवा पुलिस करेगी, उसकी जांच अथॉरिटी करेगी। इनके बोलने से कोई भी चीजों का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। और जहां तक सेफ्टी मेजर्स की बात आती है, वो लूथरा ब्रदर्स ये बेशक कह रहे हैं कि पूरा मामला जो है वो इवेंट मैनेजर्स का था और मैनेजर्स काफ़ी गिरफ्तार भी हो गए हैं, बट जहां तक सेफ्टी पैरामीटर्स की बारे में बात आती है, क्या वहां पे सारे रूल्स रेगुलेशन, सेफ्टी एग्जिट वगैरह फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था? इसकी जिम्मेदारी लूथरा ब्रदर्स की बनती है? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बनती है। इन्होंने सारी एनओसी, सारे अनापत्ति प्रमाण पत्र, या हम जिसे कह सकते हैं कि जो ट्रेड लाइसेंस है या फिर जो दूसरे एफडीए लाइसेंस है, फायर कॉम्प्लायंस है, फायर कॉम्प्लायंस के अलावा आपको बताऊं तो ग्राम पंचायत की जो एनओसी है, उसके बाद जो मापसा फायर ब्रिगेड की एनओसी है वो इन्होंने नहीं ली थी। तो ऐसे कई इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप जो आपका पब है, बार है या डिस्कोथेक है वो आप चलाए जा रहे हो, क्लब चलाए जा रहे हो, रात भर आपका क्लब चल रहा है, तो क्या रात भर आपको उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो फायर वर्क्स है उसकी आपको अनुमति थी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो आतिशबाजी है उसकी वजह से ही आग लगी है, ऐसे प्रामा फेसी जांच में फायर ब्रिगेड ने पाया है। तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी वहां क्यों कर रहे हो जहां ऑलरेडी लकड़ी यानी वुडन सब जो है इंटीरियर किया हुआ है, लकड़ी का काम किया गया है? तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये इनकी बहुत सारी गलतियां हैं जिसकी जांच होगी।